Dear all, in this lecture, we are going to discuss some lab programs based on the statements and loops in C programming. So, before starting the lecture, we will discuss the question given to you in the previous lecture. So, question given in the previous lecture, the question was given how many times the following code prints the string hello. So I think here we are using the for loop, and for loop is started from 1 and it is incremented I plus plus by 1 again, so it will become 2. So now after incrementing 1 it will become 3, thus it will go up to 50, and then we are printing the hello. So it will print the hello 50 times. So I think 50 should be the answer. So 50 is the correct answer for this question. So because here we are starting the for loop from 1 and we are incrementing the value of I by 1 by 1, and it will go up to 50. So 50 should be the 50 times hello will be printed in this answer. Now if we talk about this lecture, in this lecture the first program given to us is program to find the largest of two numbers using if else. So we have to determine the largest of the two numbers. So what we are doing, we are writing stdio.h, we are starting the program, we have taken the two numbers a and b, we are asking the user to enter the value of a and b. So here we are writing scanf. So here a user will enter the a value of a and b. So we will be writing here if a is greater than equal to b, then b will print the a is the larger number. Otherwise we will print that b is the larger number. So we can take one example. If a is equal to 8 and b is equal to 7, so it will print 8 is larger number. So this is the program to find the largest of the two numbers in C using if else statement. Now, if we move on the second question is program to find whether the number is divisible by 5 and 11. We have to find the number which is divisible by 5 and 11 both. So what we are doing, we are including the header file, we are starting the program, we are asking the user to enter, we have taken one variable num, we are asking the user to enter the number, any number can be anything. So we are writing scanf so that user can enter the number. Then we are checking if number is after dividing them, we are using the modulo operator. Modulo operator will give the remainder. So we are checking after dividing the number if the remainder is 0 or not. If it is 0, then number is divisible by the 5. If the remainder is not 0, then number is not divisible by 5. If it is divisible by 5, then B will check if it is divisible by 11 or not. So how we can check? We are dividing the number by 11 and we are checking the remainder is 0 or not. So if it is divisible by both the numbers, that is 5 and 11, then we are printing that number is divisible by 5 and 11 both. Otherwise, we will print that number is not divisible by 5 and 11. Same thing. So we can take any example. If we take the example 110, then 110 is divisible by 5, and it is also divisible by 11. So it is divisible by both the numbers. So it is printing that 110 is divisible by 5 and 11 both. Now, if we talk about the third, the program third is that we have to program to find the grade of student based on the marks. If he
if the marks of the student are from 90 to 100, then we will print the A grade. If the marks of the student are from 80 to 89, then we will print the B grade. If the marks of the student are from 70 to 79, then we will print the C grade. So we are including the header file. We are starting the program. We have taken the one variable marks. Then here we are asking the user to enter the marks. Then we are comparing the marks. Here user will enter the marks. We are writing a scanf m% marks. Then here if we are comparing the marks, if marks are greater than 90 and this is the logical and marks are lesser than the 100. So if less than or equal to 100, if marks are between 90 to 100, then we will print the student grade A. Same thing, we are again using the logical and. Logical and, if marks are equal to or greater than 80 and up marks are less than equal to 89, then we will print the B grade. Same thing, if marks are greater than 70 and less than 79, then we will print the grade C. Otherwise, we will declare that student is fail. So if it is less than 70, then we are declaring that student is fail. So like this, we can take one example. We are asking the user to enter the marks. If he has entered 87, then he will print the grade B. How he will print? This is in this range from 80 to 89. So this will print the grade B. Now, if we talk about the question number 4, in question number 4, the program to find the greatest among the three numbers using if-else ladder. We have to find the greatest of the three numbers. So here we are including the header file. We are starting the program. We are taking the three numbers A, B and C. We are asking the user to enter the three numbers. So here scanf, by writing the scanf, user will enter the three numbers A, B and C. Now we are checking the condition. If A is greater than equal to B and logical AND is there, and A is also greater than equal to C, if A is greater than B and also greater than a C, then we will print that A is the greater number. Same thing, we can check another condition. If B is greater than, if V is else if, we will write here else if, here else if should be there, else if. So if B is greater than A and B is also greater than C, then we will print that B is the greater number. Otherwise, if B is not greater and A is not greater, then we will print that C is the greater number. We can check any condition, that is we are entering the number 677, then it is saying that 7 is the greater number. So this is about question number 4. If we talk about program number 5, the program number 5 is that program to determine the grade based on the marks using the switch. We have to use the switch case. We have to use the switch case here, then to find the grade of the student. So grade, same question we have taken as we have taken previously. If the student marks are from 90 to 100, then we will print the grade A. If the student marks are from 80 to 89, then we will print the grade B. If the student marks are from 70 to 79, then we will print the grade C. Then we are including the header file. Then we are starting the program. Then we have taken one variable marks, another variable we have taken the character ch. Then ch will be is an integer here, so it is not a character. It is ch is one variable here, that is int. So we will ask the user to enter the marks of the student. Scanf, then student will enter the marks here. Then we are calculating the value of the ch from 0 to 9. Ch is equal to marks by 10. So if his marks are 90, then if we will divide by 10, then we will have the quotient 9. So now we are using the switch case. We are writing the switch
inside the bracket we are writing the value of the ch. If ch value is 9, then it will print here, it will print the value a, that is he is having a grade. Same thing, if same thing if the student ch value is 8, then we will print the grade b. If the ch value is 7, then we will print the grade c. By default, otherwise we will say that student is fail. So like this, same program, if he is having 87 marks, then we will print the grade b. So we can do the same program with the help of the switch case also. Now, if we talk about the question number 6, the question number 6 is we have to find the area of shapes, that is circle, rectangle and triangle, using the switch. We have to use the switch case to find the area of circle, rectangle and triangle. So here we are including the header file. We are starting the program. We are taking one character, that is ch. Then we are taking the variables. For rectangle we are taking the length le, breadth vr. For circle we are taking the radius ra. For triangle we are taking the base ba and height he. For the area of the rectangle we are taking variable rec. For area of the circle we are taking the variable cir. For area of the circle we are taking the variables tr is equal to 0. And for area of the circle, we have to take one value 3.14. So we have taken the px, that is float. When we have declared it constant, then we are taking px is equal to 3.14. दोस्तों अगर यहाँ पे वो उसमें से हम पूछेंगे कि किसका एरिया फाइंड आउट करना है, ये तो इसका शेप पूछेंगे। अभी उसको रेक्टेंगल के लिए हम आर है, सर्कल के लिए यहाँ पे सी एंटर करेगा तो सर्कल का एरिया मिलेगा उसको। अगर वो टी एंटर करेगा तो ट्राइंगल का एरिया मिलेगा। वी आर आस्किंग द परसेंट सी एम परसेंट सी एच, मतलब उससे कोई एक कैरेक्टर पूछा जाएगा, या तो आर एंटर करे या सी एंटर करे, उसको किसका एरिया फाइंड आउट करना है। अगर वो एंटर करता है आर, तो इसका मतलब कि उसको रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमको लेंथ और ब्रेड्थ की ज़रूरत है। तो हम क्या करेंगे, उससे बोलेंगे कि आप लेंथ और ब्रेड्थ एंटर कीजिए। देन ही विल, वी आर राइटिंग द scanf, so he will enter the length and breadth. Now rectangle area is equal to length into breadth, so we will find REC is equal to length into breadth. Then उसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू परसेंट डी, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल को डिस्प्ले कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, दैट इज इट विल नॉट चेक द अनदर एरिया। नाउ if he is entering the c means he want to find the area of the circle। if उसने कौन सा c एंटर किया, c का मतलब होता है कि उसको काय का सर्कल का एरिया चाहिए। तो वी विल आस्क, उससे क्या करेंगे, उससे पूछेंगे भाई रेडियस बताओ। तो क्या करेगा, ही आई एम राइटिंग द scanf m%d देन m%ra, उसको क्या करेगा, रेडियस एंटर करेगा। देन द सर्कल का एरिया होता है 3.14, दैट इज वी हैव टेकन द वन कांस्टेंट px 3.14 इंटू आर स्क्वायर, दैट इज रेडियस इंटू रेडियस। तो इस फॉर्मूले से हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो हम एरिया ऑफ सर्कल को, यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल CIR आ गया, यहाँ पे हमने इसको प्रिंट एफ करके डिस्प्ले कर दिया और यहाँ पे ब्रेक कर दिया। इसके बाद वो अगली कंडीशन को, अगले टर्म को चेक केस पर नहीं जाएगा। अगर वो एंटर करता है टी मतलब क्या है कि उसको ट्राइंगल का एरिया चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उससे पूछेंगे कि भाई बेस बताइए और हाइट बताइए। तो वी आर राइटिंग द scanf, सो वी आर राइटिंग m%ba m%he, सो ही विल एंटर द हाइट एंड बेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे 0.5 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस हिसाब से हमारे पास ट्राइंगल का एरिया आ जाएगा और ट्राइंगल का एरिया हम डिस्प्ले कर देंगे, दैट इज वी आर राइटिंग। अगर क्या करता है, उसको इसमें से आर सी और टी में से कुछ भी एंटर नहीं करता है,
तो वी विल से बाय डिफ़ॉल्ट यू एंटर द रॉन्ग शेप, ट्राई अगेन। इस हिसाब से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हमने पूछा कि आप क्या करें कि यहाँ पे आर, सी और टी में से एंटर करें। अगर वो क्या करता है कि यहाँ पे टी एंटर कर देता है, तो वहाँ पे हमने पूछा कि बेस और हाइट बताइए। तो उसने बेस एंटर किया 8 और हाइट एंटर की 9। तो हमारे पास अगर इस फॉर्मूले से हम बात करें तो उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा 1 इंटू 2, 1/2 इंटू 8 इंटू 9, so it will become the 4, so it will become the 36, so area of triangle will be 36 here. अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि प्रोग्राम टू प्रिंट द मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ अ गिवन नंबर। अगर वो कोई नंबर देता है 5, तो 5 का टेबल आपको प्रिंट करना है। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। सो व्हाट वी आर डूइंग, यहाँ पे हमने हेडर फाइल इंक्लूड की, यहाँ प्रोग्राम को स्टार्ट किया। वी हैव टेकन द वेरिएबल num एंड tab एंड वी आर टेकिंग वन वेरिएबल i। यूजर से क्या करेंगे, नंबर पूछेंगे भाई किसका टेबल आपको प्रिंट करना है। तो यहाँ पे क्या करेगा, वी आर राइटिंग स्कैनएफ लिखा आपने, तो स्कैनएफ से ही उसको क्या करेगा, नंबर एंटर करेगा। यहाँ पे हमने फॉर लूप का यूज किया। टेबल लिखने के लिए हमको एक बार 1 का मल्टीप्लाई करना है, फिर 5 में ही आपको 2 का मल्टीप्लाई करना है। सेम थिंग वी विल मल्टीप्लाई 5/3, देन वी विल गेट द 15। सो लाइक दिस एक फॉर लूप यूज कर लिया जो स्टार्ट कर रहा है आई को 1 से और कहाँ तक जाएगा 10 तक, एंड इट विल इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ आई बाई 1/1। देन टेबल क्या हो जाएगा, नंबर इंटू आई। नंबर तो फिक्स है, आई की वैल्यू जो है वेरी कर रही है कहाँ से कहाँ तक, क्या वेरी कर रही है आई की वैल्यू, वेरी कर रही है फ्रॉम 1 2 3 like this. So how we are getting the I, that is we are multiplying here by 1, we are multiplying the by 5/2, we are multiplying 5/3, we are multiplying 5, so I is varying here 1 to 10. So it will give the table, then we will print the table. So we are writing here /n कि टेबल में क्या हुआ, एक नंबर प्रिंट करने के बाद 5 को या 8 ले रहे हैं तो 8 को प्रिंट करने के बाद यहाँ पे सेकेंड लाइन पे आ जाए। दस वी विल हैव द टेबल फ्रॉम दिस प्रोग्राम। अगर एग्जांपल लेते हैं, हमने यूजर से पूछा आप एंटर कीजिए कोई नंबर, अगर वो 8 एंटर करता है तो इस हिसाब से हम वी विल हैव द टेबल ऑफ 8, 16, 24 अप टू 80। सो दिस इज द प्रोग्राम विच इज प्रिंटिंग द टेबल ऑफ एनी नंबर। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, प्रोग्राम टू फाइंड रिवर्स अ नंबर यूजिंग व्हाइल लूप। व्हाइल लूप की हेल्प से हमको क्या करना है, एक नंबर को रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब क्या होता है, जैसे हमने 456 लिया तो आंसर क्या आना चाहिए, रिवर्स ऑफ द नंबर 654। तो हमने यहाँ पे किया, प्रोग्राम में हेडर फाइल इंक्लूड की, प्रोग्राम को स्टार्ट किया। देन प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद हमने क्या किया, एक नंबर ले लिया, यहाँ पे रिवर्स इज इक्वल टू 0 इनिशियल में ले लिया। देन वी हैव टेकन वन वेरिएबल बिट। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजर से पूछ रहे हैं कि आप नंबर एंटर कीजिए, तो वी आर राइटिंग स्कैनएफ, तो यहाँ पे क्या करेगा, यूजर नंबर्स को एंटर करेगा। देन वी आर राइटिंग व्हाइल नंबर इज नॉट इक्वल टू 0। एक कब तक व्हाइल लूप चलने वाला है, जब तक नंबर की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। तो हमने क्या किया, जैसे 456 है तो 456 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, मॉड्यूलो 10 लिखेंगे, मॉड्यूलो 10। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 6। तो इस हिसाब से हमने 6 को सेपरेट कर लिया, तो यहाँ पे बिट आ गई मेरे पास 6। सेम थिंग नंबर को अगली बार क्या करेंगे, 5 को सेपरेट करना है, तो इसी नंबर को 456 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन आएगा हमारे पास 45 क्वेश्चन आएगा। तो 45 से का फिर नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, 45 का मॉड्यूलो 10 करेंगे, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर करके 5 आ जाए। तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे रिवर्स नंबर का फॉर्मूला अप्लाई किया, रिवर्स इंटू 10 प्लस बिट। तो नेक्स्ट टाइम पे हमारे पास अगर हम बात करें, इसको निकालने का तरीका क्या हो गया, इसी फॉर्मूले से कि हमने 6 को सेपरेट किया,
तो 6 में अगर 100 मल्टीप्लाई कर दें, 5 में 10 का मल्टीप्लाई कर दें और 4 को ऐड कर दें, तो यहाँ पे मेरे पास 654 आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे रिवर्स ऑफ नंबर फाइंड कर सकता हूँ। तो नंबर में से पहले डिजिट निकालने का तरीका क्या है, मॉड्यूलो ऑपरेटर हमको लगाना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड डिजिट निकालने का तरीका क्या होगा, नंबर को एक बार क्वोशिएंट फाइंड करके फिर से मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम नंबर में से डिजिट सेपरेट करेंगे और उनमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर मेरे पास रिवर्स ऑफ द नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से रिवर्स ऑफ द नंबर आ जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, तो प्रोग्राम टू प्रिंट द फिबोनाची सीरीज अप टू n टर्म्स। फिबोनाची सीरीज का मतलब क्या होता है, फिबोनाची सीरीज में आपका ए टर्म अगर 0 है, बी टर्म आपका 1 है, तो अगला टर्म क्या होगा, एक 0 हो गया एक 1 हो, तो अगर नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, दैट इज सी इज इक्वल टू विल बी ए प्लस बी। तो हमारे पास क्या हो गया, अगला टर्म आ गया इन दोनों का एडिशन 1। सेम थिंग नेक्स्ट, इसके बाद का टर्म क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, दैट इज 2। इसके बाद का टर्म क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, तो एक 3 आ जाएगा। इसके बाद का टर्म क्या हो गया, इन दोनों का एडिशन, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 5। सेम, so this is the Fibonacci series. So how many, we will ask the terms from the user, तो यूजर को टर्म्स एंटर करने के बाद हम उतने टर्म्स तक Fibonacci सीरीज एंटर कर देंगे। So we have taken a is equal to 0, b is equal to 1, we have taken one variable c, and we have taken one variable term, one variable I. We are asking the user to enter the number of terms. So scanf m% d m% term. So user will enter the number of terms. Then we are displaying the previous two term, that is a और b. Now दो टर्म हमने डिस्प्ले कर दिए, तो उसके बाद के तीसरे टर्म के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, आई इक्वल 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आई शुड बी लेस देन द टर्म, उसने 5 टर्म, फॉर एग्जांपल 8 टर्म दिया, तो 8 तक जाएगा आई प्लस प्लस। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके नेक्स्ट टर्म की वैल्यू हो जाएगी इन दोनों का एडिशन। देन वी आर प्रिंटिंग द सी। अब क्या होगा, अगली बार के लिए हमारे पास क्या होने वाला है, नेक्स्ट टर्म के लिए, कि इसमें क्या होने वाला है, नेक्स्ट टर्म के लिए मेरे पास क्या होने वाला है, कि यहाँ पे बी विल बिकम द ए एंड सी विल बिकम द बी। तो ए और बी की जो वैल्यू है वहाँ पे क्या हो जाएगी, आपके पास सेपरेट हो जाएगी, दिस इज मतलब एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, और इस हिसाब से अगला टर्म आपका एडिशन में आ जाएगा। So for example, we are 8 terms. So we will have the following answer: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. So this is about the program 9. If we talk about the program 10 की अगर हम बात करें, तो प्रोग्राम टू डिस्प्ले द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बिटवीन 1 एंड 1000, 1 और 1000 के बीच के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर मुझे फाइंड आउट करना है। What is the Armstrong number? It is a number that is equal to sum of its digit raised to power of number of digits in the number. मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको एंटर किया 153, तो देयर आर 3 डिजिट्स, तो इनका अगर इनकी पावर क्यूब किया, 1 का क्यूब किया जाए, 5 का क्यूब करें और 3 का क्यूब करें, 3 डिजिट है तो क्यूब करना पड़ेगा, 2 डिजिट का नंबर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा, 4 डिजिट का नंबर है तो हर एक डिजिट में पावर ऑफ 4 लेना पड़ेगा। तो इन तीनों का एडिशन अगर इस नंबर के बराबर है, तो इसको बोलते हैं बड़ी भुजाओं वाली नंबर, उसको बोलते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, स्ट्रॉन्ग भुजाओं वाली नंबर, दैट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 125 + 27. If we are getting here 153, so this number is Armstrong number. तो ये नंबर कैसा हो जाएगा आपके पास, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करें, इस प्रोग्राम को करने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्रोग्राम को स्टार्ट किया। प्रोग्राम में एक पावर का फंक्शन यूज करना है, तो उसके लिए एक math.h हेडर फाइल इंक्लूड की। We are taking the variables bit num arm I count is equal to 0 and 10. Here we are writing here I is equal to 1. We have to find all the Armstrong numbers from 1 to 1000.
So we are starting from 1 and we have taken a while loop. I will go up to 1000. 1 से स्टार्ट करके कहाँ तक जाएगा 1000 और यहाँ पे i प्लस प्लस लगा दिया। इनिशियल में आर्म इज इक्वल टू 0 ले लिया, देन टर्म इज इक्वल टू मैंने क्या ले लिया यहाँ पे टर्म इज नंबर इज इक्वल टू आई ले लिया, टर्म इज इक्वल टू भी आई ले लिया आपने। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक और चीज़ आएगी, यहाँ पे काउंट इज इक्वल टू 0 भी आएगा। काउंट इज इक्वल टू 0 भी हर बार इनिशियलाइज होगा। तो यहाँ पे आप एक चीज़ इंक्लूड कर लीजिए, काउंट इज इक्वल टू 0। ये भी आर स्टार्ट, तो हमने पहले मुझे काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी है उसके हिसाब से मुझे पावर का यूज करना पड़ेगा, उतनी पावर लगानी पड़ेगी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड आउट करने के लिए मैंने नंबर एक और वाइल लूप यूज किया कि नंबर नो, अब ये वाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक नंबर नॉट इक्वल टू 0। देन वी आर फाइंडिंग द क्वोशेंट, अगेन वी आर डिवाइडिंग बाई 10, वी आर फाइंडिंग द क्वोशेंट। सो इट विल सेपरेट आउट द डिजिट्स। तो डिजिट्स का काउंट मिल जाएगा मुझे। तो हियर वी आर इंक्रीजिंग काउंट बाई 1 सो आफ्टर दिस लूप आई विल फाइंड आउट द काउंट। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ 153, देन मेरे पास काउंट क्या आएगा 3 मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इन द 153। तो नंबर ऑफ डिजिट्स आने के बाद तो मेरा काम बहुत आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा मतलब कि उसी नंबर को मैंने टर्म में भी यहाँ पे लिया हुआ है, नंबर को यहाँ पे टी ई आर इज इक्वल टू भी आई लिया हुआ है, दैट इज नंबर। तो उसी नंबर में से मैंने फिर बिट सेपरेट आउट करी और बिट सेपरेट करने के बाद हर एक बिट का मैं पावर कर दिया। अगर नंबर ऑफ डिजिट 3 डिजिट का है तो क्यूब कर दिया। फिर क्यूब करने के बाद अगले डिजिट के लिए क्यूब फाइंड आउट करने के लिए उसी में फिर से एडिशन कर दिया। सो वी आर पुटिंग हियर आर्म इज इक्वल टू आर्म प्लस पावर ऑफ द डिजिट। फिर हमने यहाँ पे चेक कर लिया कि इफ़ अगर नंबर की वैल्यू हमारे एडिशन के बराबर है तो क्या हो गया कि ये नंबर के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है तो उसको प्रिंट कर दिया, अदरवाइज वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारे पास 1 से 1000 तक के आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स आ गए, क्योंकि ये तो सिंगल डिजिट से तो रहेंगे ही। तो 153, 370, 371 एंड 407 आर द आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर्स। These are the Armstrong numbers from 1 to 1000. So this is all about this question number 10. Now, तो इस हिसाब से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 10 आ गया। तो इस लेक्चर में हमने 10 प्रोग्राम डिस्कस किए। इसमें से इस लेक्चर के लिए क्वेश्चन असेसमेंट क्वेश्चन हम दे रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं और इसका आंसर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सपोज द फर्स्ट फिबोनाची सीरीज इज 0, फिबोनाची नंबर इज 0, दैट इज a इज इक्वल टू 0, सेकेंड इज 1, b इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द सिक्स्थ फिबोनाची नंबर। इसमें से सिक्स्थ फिबोनाची नंबर क्या आएगा ये आपको हमको बताना है। सो यू हैव टू गिव द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ठीक है, आंसर विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो दोस्तों अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों तक, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम लोग ये सी प्रोग्रामिंग और भी प्रोग्रामिंग लेक्चर्स रखेंगे, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग और इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स भी आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल।